اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو کہانی سنانے والے ہیں جس میں آپ کو بتانا ہے کہ شک کتنی بری بیماری ہے۔ دیہات کی اکثر لڑکیاں اپنے علاقے کے مشہور آدمی سے متاثر رہتی ہیں۔ ان کی بہادری کے قصے سن کر ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ پولیس کی چیرہ دستیوں سے صرف وہی ایک شخص انہیں اور ان کے کنبے کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ میرن نے بھی خواجہ سرور کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ بڑے دل گردے کا آدمی ہے، بہترین گھڑ سوار اور اعلیٰ درجے کا شکاری ہے، اپنی آن پر مر مٹنے والا اور کمزوروں کا بھی دستراز تھا۔ غرض اس شخص کے قصے ہم جولیوں سے کنویں کی منڈیر پر سن کر میرن نے اس کو اپنے خوابوں میں بسا لیا تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے کی ان پڑھ دیہاتی لڑکی تھی۔ وہ سرور کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، تاہم سوتے جاگتے اس کے تصور میں اس کا پرتو بہتا تھا۔ حالانکہ اس نے اس سونے سجیلے گھبرو کے معاشقوں کے قصے بھی سن رکھے تھے، لیکن ان قصوں سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ زبردستی تو کسی کی بہو بیٹی کو اٹھا کر نہیں لے گیا تھا، وہ خود اس کی پناہ میں جانے کو راضی ہوتی۔ وہ اس کو پناہ دینے سے ڈرتا بھی نہ تھا، پھر اسے ان کے وارثوں کی فکر نہ ہوتی کہ یہ لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اس طرح اس کی 3 بیویاں ہوئیں۔ پہلی بیوی اس کے اپنے خاندان کی چچا زاد شریک حیات جو اس سے 8 سال بڑی تھی، اور باقی دونوں 25-26 سال کی تھی۔ اس کی ہم عمر تھی جن کو کالی کر کے ان کے لواحقین قتل کر رہے تھے، تو وہ بھاگ کر اس کی پناہ میں آ گئی تھی۔ دونوں ہی بے حد خوبصورت تھیں، لہٰذا سرور نے ان کی رضامندی سے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ یہ لڑکیاں جب بھاگ کر ان کی پناہ میں آئیں تو ان کے ورثاء سرور کے پاس اپنا معاملہ لے کر آئے اور منصفی چاہی۔ ان کے نزدیک منصفی یہ تھی کہ ان کی بھاگی ہوئی لڑکیاں انہی کے حوالے کر دی جائیں، تاکہ وہ ان کو بدچلنی کی سزا کے طور پر جہنم واصل کر کے اپنی غیرت کی آگ کو لڑکیوں کے خوف سے ٹھنڈا کرے، یا پھر اس کو کسی دور دراز علاقے میں فروخت کر آئیں۔ لیکن خواجہ سرور نے یہ انصاف کیا کہ لڑکیاں منہ مانگے داموں خود خرید لیں اور پھر ان سے نکاح کر لیا۔ وہ 2 زندگیاں بچا کر ان کو عزت کی زندگی دینا بھی کچھ لوگوں کے نزدیک ایک احسن قدم تھا، ورنہ دیہاتی کب ان کو جان سے مارے بغیر چھوڑنے والے تھے۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، لہٰذا لڑکیوں کے ورثاء کو خواجہ سرور سے صلح کرتے ہی بنی۔ یہ تو ثابت تھا کہ وہ کسی کی بہو بیٹی کو زبردستی یا میلی نظر سے دیکھ کر اٹھانے کا قائل نہ تھا۔ کوئی سندری خود سے اس پر فریفتہ ہو جاتی تو اس کی نسوانی جذبات کا مان رکھنا بھی وہ اپنی مردانگی کے لیے لازم سمجھتا تھا۔ اس قسم کے کچھ معاشقے موصوف کے بارے میں مشہور تھے، لیکن میرن کا اس سے کیا لینا دینا؟ وہ اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا، مگر شادی تو اس کی مدد سے طے تھی۔ دیہات میں لڑکیوں کی شادیاں جلدی کر دی جاتی ہیں۔ میرن نے بھی 17ویں سال میں قدم ہی رکھا تھا تو باپ نے اس کو اپنے چچا زاد کے سپوت ممدو سے بیعت دیا، وہ جو بہت زیادہ خوشحال نہ تھا۔ وہ 2 وقت کی روٹی اس کو کھلا سکتا تھا۔ اپنے سے بھی ہلکے گھر میں ڈولی سے اتری تو اس کے خیالوں کے محل ڈھہ گئے۔ وہ شادی کے بعد ذہنی طور پر سخت ناآسودہ زندگی بسر کرنے لگی۔ اس کے خوابوں میں وہی شہزادہ رہتا تھا جس کی تعریفیں ندی پر پانی بھرتی لڑکیاں کرتی تھیں۔ خواجہ سرور کا علاقہ غازی گھاٹ سے دوسری جانب 10 میل پرے تھا۔ درمیان میں چناب کا پانی گھس آیا تھا، لیکن اس کے پاس ایک چھوٹی ندی کے برابر رہ جاتا تھا۔ اس کو ہم دریا کی ذیلی شاخ کہہ سکتے ہیں، تاہم اس کو تیر کر ہی پار کیا جاتا تھا۔ ایک شام میرن کی اپنے شوہر سے لڑائی ہو گئی۔ ممدو ایک تو اس کو بھاتا نہ تھا، اوپر سے رعب جماتا تھا۔ میرن کی نفاست پسند طبیعت کو اس کے پسینے سے ڈوبی کپڑوں کی بو برداشت نہ ہوتی تھی۔ وہ سارا دن دھوپ دھول مٹی میں کام کر کے رات کو تھکا ہارا آتا تو بغیر کپڑے تبدیل کیے کھاٹ پر پسر جاتا اور سر پر سرسوں کا کڑوا تیل چپڑ لیتا۔ سر کی مالش کروانے کے بعد وہ میرن سے کہتا، اب میرے پیروں کو تیل لگا، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کو محمد کی یہ فرمائش بالکل بھی اچھی نہ لگتی۔ وہ کہتی، اف، تیل کی تیکھی بو سے میرا دم گھٹتا جاتا ہے، کم از کم تیل تو تھوڑا لگ یا کر بدن پر ساری بوتل بہا لیتا ہے۔ مالش ہم جیسے مزدوروں کے لیے بہت ضروری ہے، دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا، اس شخص کو مالش کا چسکا تھا۔ دن بھر کی لادی سے اس کے بازو، کمر اور پنڈلیاں اکڑ جاتے تھے اور ان میں رٹ پڑنے جاتے تھے۔ بے شک وہ صبح سویرے نہا دھو کر کام پر جاتا۔ صبح سویرے نہانا اس کا معمول تھا، لیکن رات کو تیل میں نہا کر سونا بھی اس کا معمول تھا۔
मीरन को उसका ये मामूल कुछ गवारा ना था। वो नाक भाव चढ़वाती तो वो कहता, सच्ची तू नहीं जानती 2 वक्त की कमाई को मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुझको मनोवजन उठाना पड़े तो तू जाने दिन भर माल की ट्रकों पर लादी से मेरा अंग अंग दुखने लग जाता है और बदन चूर चूर हो जाता है। उस रोज मीरन ने मालिश करने से इनकार कर दिया तो लड़ाई हो गई और वो बकता जलता बगैर कुछ खाए पिए ही सो गया। मगर मीरन की नींद उड़ गई। उसने भी रात का खाना ना खाया। देर तक अपने नसीबों को रोती रही, ये सोच कर कि अब तमाम हयाती ही उसको तेल की सड़ी बसांत के साथ गुजारनी पड़ेगी। पहले जब उनकी किसी बात पर लड़ाई होती तो वो ममदू से कहती कि अगर तूने मुझे तंग किया तो मैं ख्वाजा सरवर के पास चली जाऊंगी और उससे तेरी शिकायत कर दूंगी, फिर वो आप ही तुझको मजा चखा देगा। हाँ हाँ कह दे, मैं नहीं डरता उससे, उसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। ममदू जानता था कि ये दीवानी ना समझ ऐसे ही गुस्से में कहती है। भला ये कब उसके डेरे पे जाकर मेरी शिकायत करने वाली है और भला वो क्यों हम मियां बीवी के मामलात में आकर टांग अड़ाएगा। उस रोज भी मीरन ने उसे यही धमकी दी थी, जिस पर वो बोला कि हाँ जा जा, उसकी पनाह में जाकर बैठ जा। जानती है ना वो पनाह में आने वाली औरतों से शादी रचा लेता है, तो तू भी कर लेना उससे शादी, तू चाहती थी। तभी मीरन के जी में क्या समाई कि उसने शोहर का ट्रंक खोला और उसका धुला हुआ जोड़ा निकालकर पहन लिया। अगरचे कुर्ता ढीला और थोड़ा सा नाप में लंबा था, मगर काम चलाना था। सर पर पगड़ी रखी वो रात की तारीकी में अकेली घर से निकल पड़ी। सरवर का गांव 10 मील पर था, मगर दिल में जब लगन लगी हो तो दूर की मंजिल भी सामने नजर आती है। शोहर की बात तो उसके दिल में शगाफ डाल चुकी थी। बुरे दिल से वो रात के वक्त पैदल तन तन्हा बयाबान में चलती रही। जब भी ममदू से लड़ाई होती थी वो यूं ही रोब डालने को उससे कहती थी कि अब अगर तूने मुझसे लड़ाई की तो मैं तेरी शामत ख्वाजा सरवर जिम्मेदार से कर दूंगी, वो तुझको जेल के अंदर करा देगा, तब तू जानेगा कि मीरन क्या भला है। जा जा कर दे शिकायत, मैं नहीं डरना किसी से, वो हमेशा यही जवाब देता था। लेकिन आज वाकई मीरन ने वही कर दिखाने की ठान ली जो कि वो कहा करती थी। आज सचमुच वो ममदू की शिकायत करने ख्वाजा सरवर की बस्ती की तरफ चल दी, वो भी रात के वक्त। जाने ये जरूरत उसमें कहाँ से आ गई थी, जबकि ऐसा तो उसने सोचा भी ना था कि जिस धमकी से वो ममदू को महज धमकाती थी कभी उसको पूरा करके भी दिखा सकती है। रास्ते में रेत का सहरा और ढेलों भरी जमीन भी उसका कुछ न बिगाड़ सकी। राह में आए नदी नाले और दरिया को भी उसने तैर कर पार कर लिया। खेत खलियान और सुनसान मैदान पार करने के बाद बिलाखिर अजान से जरा पहले वो ख्वाजा सरवर की बस्ती में पहुंच गई। ख्वाजा सरवर चारपाई डाले अपने डेरे पर सो रहा था। जरा देर को उसका चेहरा तकती रही, फिर सोचने लगी कहाँ ये इतना हसीन मगर खूबसूरती में मैं भी किसी से कम तो नहीं। मीरन को अपने हुस्न पर इतना तो एतमाद था कि वो किसी मर्द से ठुकराई नहीं जा सकती। थोड़ी देर मबहूत खड़ी रहने के बाद बिलाखिर उसने आगे बढ़े सोते हुए सरवर का कंधा हिलाया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। चांदनी की रोशनी में नहाई एक हसीन और जमील औरत उसके सामने खड़ी थी। कुछ सातें उसको समझने में लगी। जब होश दुरुस्त हुआ तो पूछा, तू कौन है, उस वक्त यहाँ क्यों आई है और क्या चाहती है? मैं मीरन हूँ, दरिया पार से तुम्हारे पास फरियाद लेकर आई हूँ। किसके बारे में फरियाद लाई है इस वक्त? ममदू के बारे में। वो मुझे डांट डपट से हरासा रखता है, कभी तो मारता भी है और मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। सरकार आप ही बताओ कि क्या कोई इंसान बिना इज्जत के जी सकता है? रास्ते में गीदड़, सुअर और कितने जानवर होते हैं, क्या तुझको डर नहीं लगा? डर? अगर लगन सच्ची हो तो किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे तो रास्ते में ऐसा कोई जानवर नहीं मिला जिससे डर लगता। वहाँ सवाए खामोशी और सुनसान रास्ते की और कुछ था ही नहीं। तुम दरिया पार से आई हो? क्या कश्ती पर दरिया पार किया था? मैंने मशकीज़े पर तय कर दरिया पार किया था। मुझको दरिया पार करने की हेच आती है। ख्वाजा सरवर ने अंदाजा लगाया कि ये औरत जुर्रतमंद और दलेर ही नहीं, बेखौफ और बेबाक भी है। ए नेक बख्त, तूने तो कमाल कर दिया। ठीक है, सुबह होने को है तो इधर सामने कमरे में कुछ देर आराम कर ले। थोड़ी देर में यहाँ नौकर बैली आ जाएंगे, वो तेरे नाश्ते पानी का इंतजाम कर देंगे। उसके बाद मैं तुझको घर भेज दूंगा और वहाँ ही तेरी फरियाद सुनूंगा। वहाँ दोपहर के बाद बस्ती के मर्द आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए तेरा इधर रुकना भी ठीक नहीं। मीरन कमरे में चली गई जहाँ चारपाई पड़ी थी। पानी का जग, ग्लास और कुछ फ्रूट भी रखे थे। मीरन ने पानी पिया और चारपाई पर लेट गई। वो इस कदर थकी हुई थी कि उसको लेटते ही नींद आ गई। नमाज के वक्त ख्वाजा सरवर ने वुजू किया और करीबी मस्जिद चला गया। वहाँ से डेरे पर लौट आने की बजाय घर चला गया।
बड़ी बीवी को माजरा बयान किया और कहा कि तुम मुलाजमा भेज कर इस औरत को घर बुलवा लो जो इस वक्त डेरे पर है, शायद बहुत थकी हुई है, पैदल तवील सफर किया है रात भर, उसको नाश्ता करा देना। मैं किसी काम से साथ वाले गाँव जाऊंगा, 2-4 घंटे बाद लौट आऊंगा, तभी आकर इस औरत का हाल अहवाल सुनूंगा। ये हदायत देकर ख्वाजा सरवर रवाना हो गया। वापस आया तो दोपहर के 12 बज रहे थे। अपने कमरे में थोड़ी देर आराम किया, अखबार देखा, फिर ओताक में चला गया। अपने मुलाजिम से कहा उस औरत को ओताक में ले आओ जो परे गांव से आई है, फरियादी है और दाद रसी जाती है, हम उसका मसला सुनना चाहते हैं। मुलाजिम मीरन को लेकर हाजिर हुआ तो ख्वाजा सरवर ने सवाल किया, हाँ भागा वाली, अब बता अपना मसला। सरदार सवाल किया, जी मैं कहाँ भागा वाली, मैं तो नसीबों फूटी हूँ। अगर भागवान होती तो क्या इस तरह सारी रात में जंगल बयाबान गुजरती तुम्हारे दर की फरियादी होती? ठीक है बीबी, तो भागवान ना सही मगर बड़ी दलेर और हिम्मत वाली है, वरना इस तरह किसी औरत का तन्हा जंगली जानवरों भरे इलाके से गुजर कर यहाँ आना मुमकिन ख्याल नहीं कर सकता। आप अपना मसला बताओ। मीरन ने अपनी रोदाद उसकी गोश गुजार कर दी। ठीक है, मैंने सुन लिया और जान भी लिया कि तू मजलूम है, लेकिन तुम्हारा आज का झगड़ा किसी बड़ी बात पर नहीं हुआ। शोहर थका आए तो बीवी को उसकी खिदमत गुजारी करनी ही पड़ती है। तुम्हारे शोहर ने कुछ ऐसा गलत हुक्म नहीं दिया था कि तू घर से ही निकल पड़ी। अब मेरी सलाह ये है कि वापस अपने घर को लौट जा, यही बेहतर है। सरदार जी, अगर मुझको वापस लौटना होता तो मैं आती ही क्यों, मैं वापस अब ना जाऊंगी। ममदू ने मुझे ऐसी बात कह दी कि मेरे दिल में शगाफ पड़ गया है। उसने कहा है कि तू जाकर ख्वाजा सरा की पनाह में बैठ जा, वो तुझसे ब्याह रचाएगा। अच्छा, तो तू अब क्या चाहती है? मैं आपकी पनाह में बैठना चाहती हूँ, इसके सिवा मेरी खुद को समोने की और कोई जगह नहीं है। अगर आपने मुझको पनाह ना दी तो फिर मुझको दरिया में फेंक दें या जंगली जानवरों के आगे डाल दें, लेकिन जिधर से निकली हूँ उधर मुड़कर ना देखूंगी। औरत के मजबूत लहजे से उसके पुरअज़म यकीन का इजहार होता था। सरवर की जहां दीदा नजरों ने पहचान लिया कि मीरन कोई मामूली औरत नहीं है। अगर इसको बेआस करके वापस किया तो फिर ये घर ना जाएगी बल्कि दरिया में छलांग लगा देगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, अच्छा ठीक है, तू तैयार रह, मैं तुझे किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाता हूँ। जंगल बयाबान का पैदल सफर करके एक तन्हा औरत ने आज उसकी मर्दानगी को ललकारा था। उसने दरख्त के तने से बंधा हुआ घोड़ा खोला, अपने साथ मीरन को बिठाया और अपने एक जिम्मेदार दोस्त के पास रवाना हो गया। उस दोस्त का नाम काले खान था। मीरन को काले खान के हवाले करके ख्वाजा सरवर ने कहा कि ये मेरी अमानत है, इसकी हिफाजत तेरा फर्ज है। मैं अभी वापस जा रहा हूँ, चंद दिनों में लौट कर आऊंगा और इसको ले जाऊंगा। काले खान ने मीरन को अपनी बीवी के पास पहुंचा दिया और कहा कि ये मेरे दोस्त की अमानत है, इसका ख्याल रखना। इस वक्त उसकी बड़ी बेगम भाई के घर गई हुई थी, लिहाजा काले खान ने मीरन को अपनी छोटी बेगम यानी दूसरी बीवी के हवाले किया था, जो काफी तेज औरत थी। वो कराइन से भांप गई कि मामला सादा नहीं है। मीरन बहुत खूबसूरत थी। काले खान की बीवी ने उससे 2-4 मीठी बातें की और माजरा पूछा तो उसने मनोआन सारी राम कहानी सुना दी। मेजबान खातून के दिल में ख्याल आया कि ख्वाजा सरवर एक वजी और खूबरू जवान है, यकीनन उसने औरत को नहीं वरगलाया बल्कि ये खुद उसके पीछे भाग कर आई है। उसके दिल में ये ख्याल भी आया कि उसकी आड़ में कहीं उसका शोहर ही ये खेल न खेल रहा हो। इस ख्याल आते ही औरत की रवायती जलसन ने उसका अंग अंग जलाना शुरू कर दिया। एक सौतन पहले थी और ये दूसरी न जाने कितनी मुद्दत के लिए आई थी। वो इनमें ही सोचों में गुम थी कि उसका भाई बास खान आ गया। उसने जो इतनी हसीन और नोखेज लड़की को देखा तो उसकी रात टपक पड़ी। कौन है ये? उसने पूछा। फिर बहन को कुरेदा और अपनी पसंद से भी आगाह कर दिया। अगर गैर शादीशुदा है तो मेरे साथ इसकी शादी करा दे। बहन तो पहले ही खौफ और बदगुमानी के समंदर में डुबकियां लगा रही थी। भाई की इस फरमाइश पर खिल उठी, बोली, जरा हालात मालूम कर लूं तो तेरे हवाले करती हूँ, थोड़ा सब्र से काम ले। बीवी ने काले खान से मीरन के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि ये मेरे दोस्त की अमानत है, मुझे नहीं मालूम कि वो आकर उसको ले जाए। फिलहाल तो मीरन को यहीं रहना है। जब 4 माह तक ख्वाजा सरवर न आया तो मीरन बेकरार हो गई। उधर काले खान को बीवी को भी खतरा महसूस होने लगा कि कहीं काले खान उससे शादी न कर ले। जब मीरन जैसी खूबसूरत बला घर में हो तो काले खान जैसे जमींदारों के दिल बदलने में देर नहीं लगती। उस बीबी ने अपने खदशात का भाई से जिक्र किया तो उसने और जलती पर तेल का काम किया। 2-4 बातें झूठी सच्ची घर कर उसको खूब डराया। औरत कांचे कानों की होती है, डर गई। सोचा कि मेरा भाई सही कहता है। पानी पल्लों से गुजरने से पहले ही उसको कहीं किसी थान के खोटे से बांधने का बंदोबस्त कर देना चाहिए। उसने भाई से कहा, अगर ये तुमको पसंद है और तुम शादी करना चाहते हो तो बेशक इसको ले जाओ, मगर इस अमर के लिए उसे राजी करना तुम्हारा काम है।
आपा ये तो मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद मीरन को राजी कर लूंगा, देख लेना ये खुशी खुशी राजी हो जाएगी। काले खान मुकदमे की पेशी के सिलसिले में शहर गया हुआ था। मौका मुनासिब देखकर अब्बास खान ने मीरन से कहा, बीबी अभी नौकर ने तुम्हारे लिए पैगाम दिया है कि ख्वाजा सरवर ने तुमको नीले बैट वाली बस्ती में बुलाया है, जहाँ वो तुमसे निकाह करेगा। इसी बस्ती में उसके जिगरी दोस्त मुश्ताक का डेरा है, उसने ही निकाह का इंतजाम किया है। ख्वाजा खुद उधर नहीं आ सकता। अगर तुमको उसके साथ निकाह मंजूर है तो काले खान के घर वाले तुमको नीली पेट पहुंचाने का इंतजाम कर देंगे। मीरन का तो सारा वजूद इस खुशखबरी के सुनने का मुंतजिर था। उसने कहा, हाँ मुझे मंजूर है, मगर कब जाना है और किसके साथ जाना है ये तुम आपा से पूछ लो, मैं तो फारिग नहीं हूँ, कल जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। चालबाज खान ने बेजारी से जवाब दिया। थोड़ी देर बाद ही काले की बीवी ने मीरन को बताया और बोली कि आज शाम को तुमको उन्होंने बुलवाया है। काले खान तो आया नहीं है, मैं बास खान के साथ तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देती हूँ, और कोई काबिल एतबार बंदा भी नहीं है। बास खान को भी कल शहर जाना है, लिहाजा आज रात वो तुम्हें नीली पेट की बस्ती पहुँचा देगा, ठीक है। मीरन जो इतने दिनों से घुटन का शिकार थी, उतावली होकर बोली और जल्दी जल्दी कपड़े बदले, बाल संवार कर तैयार हो गई। काले की बीवी ने उसको चांदी के कुछ जेवरात दिए कि निकाह होने जा रहा है, फिलहाल तुम ये पहन लो, ख्वाजा निकाह के बाद सोने के जेवरात तुमको खुद पहना देगा। और ममदू का क्या होगा, उसके साथ मेरा निकाह बाकी है। ये कानूनी मामला सुलझाने में तो सरवर मसरूफ था, अब तलाकनामा ले लिया है, तुम ही तो निकाह कर रहा है, बाकी बातें तुम खुद उससे मिलकर पूछ लेना। बेचारी मीरन काले खान की बीवी पर एतबार करती थी, इस एतबार की वजह से वो बास खान के साथ चली गई। काफी दूर घोड़ी पर सफर करने के बाद बास खान ने उसको एक मकाम पर ले आया, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक ख्वाजा सरवर का नामो निशान न था। उसने अपनी अमानत उस लिए जिगरी दोस्त काले खान के सुपुर्द की थी कि वो निकाह के बगैर किसी औरत को छूना न चाहता था, और नहीं चाहता था कि मीरन को अपने पास रखने के बाद उससे कोई गलती हो जाए। उसको ममदू और उसके बाप से मामला तय करने थे, उनसे तलाकनामा लेने के बाद ही वो मीरन का जायज वारिस बन सकता था। यूं ताखीर हो गई और काले खान की बीवी ने मामले को समझे बिना मीरन को अपने लिए खतरे की घंटी समझकर अपने भाई के सुपुर्द कर दिया। मीरन धोखे में लुटकर बास खान की बीवी बन गई। वो घर से निकल चुकी थी, अब वापस लौटना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। वो दिन भर जब काले खान शहर से लौटा, उसको पता चला कि उसकी दोस्त की अमानत बास खान ले उड़ा है, तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसने बीवी से कहा कि बेशक वो घर छोड़कर आई थी और तुम्हारे ख्याल में अच्छी औरत न थी, लेकिन वो मेरे दोस्त की अमानत थी, वो दोस्त जो मुझ पर भरोसा करता है। तुमने मुझको ख्वाजा सरवर के सामने शर्मिंदा किया है, अब वो मुझ पर कभी एतमाद न करेगा। इस जुर्म में मैं तुमको तलाक देता हूँ। ये एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से वफादारी निभाने की खातिर अपनी बीवी को तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया। मीरन तो बास खान की बुरी भली जो जिंदगी मिली गुजारने लगी, लेकिन बास खान की बहन मुतल्लिका होकर मैके लौट आई। इसलिए शक करने से पहले हमेशा हालात को जान लेना बेहतर होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।